اچھا. یلبسانی، تلبسنا. بہت اچھا. آگے آئے گا البسو. ہاں البسو اور نلبسو. نلبسو. بہت بہت اچھا. چلیں نسیم بن اگر آپ کے پاس ٹائم ہو نا تو اس کو مجھے لائے نفی اور لائے نہیں کے ساتھ لکھ کر میسیج میں بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں میں آپ سب کو ایک ایک لفظ دیتی ہوں سورہ جمعہ سے تاکہ ہمیں سورہ جمعہ کے جو ورڈز کی میننگ ہے نا وہ بھی آ جائے. ٹھیک ہے. ایسے کرتی ہوں کہ میں سورہ جمعہ سے ایک ایک لفظ سب کو دیتی ہوں تاکہ ہمارے پاس سورہ جمعہ کے جو ورڈز ہیں اس کی بھی میننگ آ جائے. تو سب سے پہلا لفظ ہے فرحہ. آپ نے مجھے بہت اچھے طریقے سے بھیجا. تو زکیہ. زکا جو ہوتا ہے نا آپ نے اس میں کیا میننگ لکھی ہے زکیہ کی؟ پاک. اس کی میننگ اصل جو اوریجنل اس کی میننگ ہے نا وہ پاک نہیں ہوتی. اس کی میننگ کو آپ نوٹ کر لیجئے گا. جی. اچھا اصل میں جو اس کی میننگ ہوتی ہے ہمارے پاس دو زکا ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے زکیہ زکی جس میں نا زکیہ اس سے نکلتا ہے. زکی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہوشیار ایکٹیو چالاک اس کو کہتے ہیں. لیکن ایک ہمارے پاس ہوتا ہے زکیہ جس سے زکوٰۃ نکلی ہے ایسے رے زے. تو یہ والا اور سورہ جمعہ میں بھی یہ والا یہ زکوٰۃ والا تھا. یہ زکوٰۃ والا تھا. اس کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ جی یہ زکی کیسے لکھا ہے آپ نے؟ وہ زال دال کا زال ہے اور یہ ہاں ریزے زے ہے. ہاں زے ہے. ریزے اور دال زال. ٹھیک ہے. تو یہ جو وہ ہے ہوشیار. اوکے. اور اس کو کیا کہیں گے؟ کلیور ہوشیار چالاک ذہین. جب انشاءاللہ اس میں بھی آئیں گے تو اس کو بھی کھولیں گے. اتنا آج کے لیے کافی ہے. لیکن یہ والا را زا والا جو زکوٰۃ اس سے نکلی ہے نا اس کا مطلب تو مطلب وہ سینٹینس یہ تھا کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں. نہیں چلے اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں فرح. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو آپ ترجمہ کرو گے نا دیکھیں ترجمہ فی الحال جب ہم شروع میں آئے نا ترجمہ بھلے فٹ نہ ہو بھلے مجھے لگتا ہے میرے جو سینٹینس ہے یا جو میرا جملہ ہے اس کے ساتھ بالکل بھی وہ فٹ نہیں ہو رہا ہے تو بھی ہم وہی ترجمہ کریں گے جو اس کی روٹ ورڈز میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. چلے سب سے پہلے میں روٹ ورڈز لکھتی ہوں اس کو آپ کرتے جائیں. طاہرہ بہن آپ کے لیے ہے صبح. صبح. چلے صبح لکھ دے سمجھ نہیں آ رہی. میں سب کے لیے لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. صبح 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 اس کا ہو جائے گا یصبح. اس کے بعد ہے تنویر آپ کے لیے ہے صبح. یصبح دو آپ کے لیے بھی صبح ہے. ٹھیک ہے. سب کے الگ الگ میننگ میں آپ کو بتاتی ہوں. ہاں دیکھو ہاں تو یہ آ جائے گا نا یصبح. ہاں بالکل. ہاں چلے مریم آپ کے لیے ہے حکمہ. اوکے. ہاں حکمہ. اور آپ کے لیے ہے فرحہ آپ کے لیے ہے بعث. بعث. اس کی میننگ کیا ہے بعث کی؟ بعث کی میننگ ہوتی ہے کہ بھیجنا. کسی کو فکس ٹائم پر کہیں پر چوز کرنا. چوز کر کے خاص وقت میں کسی کے بھیجنے کو کہتے ہیں. خاص وقت میں چوز کر کے بھیجنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 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 میں ایک لفظ لکھتی ہوں پیچھے کیونکہ میں بھول نہ جاؤں. آج مجھے یہی کرنا ہے. بات سن. چلے نسیم بہن آپ کے لیے ہے حکمہ ہو گیا نا بیان ابنی. ابا اس کو فعل مضارع میں صرف کرنا ہے اور لاہے نفی اور لاہے نہیں میں. ہاں اس کو ہے نا فعل مضارع میں ابھی صرف کرنا ہے لیکن لائے نفی اور نہیں آپ مجھے میسج میں بھیج سکتے ہیں. مجھے ہوم ورک نہیں ملا ہے سورہ جمعہ کا بھی. میرا کیا ہے رسل؟
रसल नहीं, वो जो नसीम बिन हिलानी है ना उनका रसल है। आपका हो गया नसीम बिन, आपका लबस था ना? जी 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 जी। चले हम आते हैं किसका है? सबह, सबह, सीन वाला सबह। मेरा है जी मेरा है बिस्मिल्लाह। जी 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 तायरा बिन बिस्मिल्लाह। सबा का यस्बिहु यस्बिहान यस्बिहुना तस्बिहु तस्बिहान यस्बिहना तस्बिहु तस्बिहान तस्बिहुना तस्बिहीना तस्बिहान तस्बहना तस्बीहना, अस्बिहु नस्बिहु अस्बिहु नस्बिहु, बहुत बहुत अच्छा। सबह का हमने मीनिंग की थी ना कि सुबह वो उस दिन हमने किया था कि वो तैरना, परवाज करना, वो डिटेल से मैंने बताया था। सबह, सबह जो है वो तनवीर अब आपका है ना? जी जी मेरा है। इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है कि सबह यानी, हाँ जी जी बताएं आप। सुबह का टाइम, वो फजर का टाइम के 3 मीनिंग वो इसकी, सुबह का वो। अच्छा इसकी 3 मीनिंग आप नोट कर लें, जी ठीक है? एक होती है जो अभी बहुत अच्छा आपने बताया कि सुबह होना। दूसरी इसकी मीनिंग होती है दिए नूर का, नूर रोशनी, बत्ती इसको भी कहते हैं, बत्ती का जलना। जैसे आप देखो बत्ती स्पेशली आता है कि वही सूरज की जो पहली चमक होती है उसको कहते हैं, जो बढ़ती रहती है, या जो लाइट जलती है उसको कहते हैं सबह। और तीसरी मीनिंग है इसकी, ये तो बहुत इस्तेमाल होता है कुरान में ज़्यादा, इसकी ये मीनिंग हो जाना, किसी चीज़ का हो जाना, वो जाना। हो जाना, ठीक है? किसी चीज़ का हो जाना। तो ये 3 मीनिंग है। हम कहते हैं इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, मिसबाह यानी वही दिया, रोशनी। अच्छा किया। चले तनवीर आप इसको सर्व करेंगे? जी 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 ये सबह का जो है फेले मजारी यस्बहु, यस। और इसका जो वजन जो फेले मजारी मुजर्रद में निकलेगा यफअलु। हाँ हाँ जी हाँ। यफअलु। हम्म। अब मैं इसको किस में सर्व करूं? फेले मुजारे में कि लाइन नफी में? फेले मुजारे में, फेले मुजारे में। फेले मुजारे में यस्बिहु यस्बिहानी यस्बिहुना तस्बिहु तस्बियानी तस्बियानी यस्बिना यस बे। यस्बिना जी। तस्बिहु तस्बियानी तस्बिहुना तस्बिना तस्बियानी तस्बिना अज़बिना नज़बिना। क्यों ये अस्बिना और नस्बिना हो गया? तो अगर हम सब मिलकर, फरहा, मरियम, तायरा बेन, नसीम बेन, अगर हम सब मिलकर मिस्टेक निकाले तनवीर आपा की, तो थोड़ा तनवीर आपा को तंग करें तो तनवीर आपा मुझे ये नहीं समझ में आया कि अस्बिन्ना नस्बिन्ना ये नून कहाँ से आ गया? अच्छा हाँ सॉरी मैं नून डालती जा रही हूँ ना। अस्बिहु नस्बिहु। बहुत अच्छा। रवानी हो जी अच्छा मजे की बाकी सही था कि वो भी बहुत सही था, लेकिन बेहतर है कि आप दोबारा करें। अच्छा पता है क्या है तनवीर आपा, एक चीज आप नोट करें, असबन्ना नस्बन जो आपने कहा ना, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा। नून जो होता है ना, ये जो नून तशदीद के साथ होता है, ये वाकई होता है, इसको कहते हैं नून ताकीद, और ये आता है फेले मुजारे के ऊपर। आपने जो किया है ना वो गलत नहीं किया था, पर हमारा सब्जेक्ट नहीं, इसकी फिर अलग मीनिंग बन जाती है, इसके बहुत बड़े कायदे और कानून होते हैं। तो तनवीर आपा दोबारा करेंगे तो हम सब मिलके, मैं अभी गलती नहीं निकालूंगी, अभी आप सब गलती निकालेंगे एक दूसरे की। चले बिस्मिल्लाह। अच्छा अभी एक टीचर नहीं, बहुत सारी है। यस्बिहु यस्बियानी यस्बिहुना तस्बिहु तस्बियानी तस्बिन्ना यस्बिन्ना सॉरी तस्बिहु तस्बियानी तस्बिहुना तस्बीना तस्बियानी तस्बिन्ना अज़बिन्ना नज़बिन्ना। किसी को गलती मिली कि नहीं मिली? हाँ आप हे की आवाज नहीं निकाल रही है, एन की निकाल रही है। सही है। हाँ
پر تنویر ابا اسبنہ پھر وہی اسبنہ نسبنہ ہو گیا. لاسٹ میں وہ اسبہو تھا اسبنہ کر دیا. کیوں اللہ یہ میرے دماغ میں یہی آ رہا ہے. اور طاہرہ بن اسبے ہو تسبے ہو, اب تو صحیح ہے نا. نسبی ہو. چلے میں تنویر ابا آپ کے پاس. آپ کو دیکھ کبھی کبھی اتنے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں. میری ایک بہت بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے, بہت ہوشیار ہے, اتنی اس کو گرامر آتی ہے, لیکن کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہے کہ وہ بالکل صرف کو الٹا کر دیتی ہے. تو یہ نارمل ہے. جو انسان آگے بڑھتا ہے نا, جو محنت کرتا ہے, وہاں پر مسٹیکس ہوتی ہیں, اور مسٹیکس سے انسان سیکھتا ہے. اور یہ جو فرسٹ پرسن میں جو ہے یس بے ہو, ہاں یس نس بے ہو. آخر میں آتی ہوں تنویر آپ کے پاس. اب تھوڑا سا چلیے. اور طاہرہ بن وہ جو ہا کو این پڑھ رہے تھے نا, تو یہاں فرینچ اسٹائل ایسا ہوتا ہے کیونکہ را کو یہاں پر غین پڑھتے ہیں فرینچ میں, اور ہا کو حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں, تو کبھی کبھی اس میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے. چلیں جی, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سلف کو اچھے سے کریں. چلیں جی, اس کے بعد کون سا ہے؟ حکم. حکم یحکمو یحکمانی مریم یحکمو یحکمو ہے. کمو. اوکے. یحکمو یحکمانی یحکمونا ہاں. تحکمو تحکمانی مریم مسٹیک ہو گئی. یحکمنا مسٹیک یحکمنا. کہاں مسٹیک ہو گئی؟ یہ میں نے آپ کو بولا تھا دیر ہو گیا. جب بھی پیش آنا ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے, پیش آگے جا کے مزے اس کو سرو کرنا. یہ یہاں پر سب کی بہت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم سرو کرتے ہیں نا, تو ابھی میں نے تھوڑا سا طاہرہ بہن کا بھی لاسٹ میں دیکھا تھا کہ جب ہم سرو کرتے ہیں نا, یفعلو کے وزن پر جو ہمارا پیش ہوتا ہے نا, جو سیکنڈ لفظ ہوتا ہے, جو اینل فعل ہوتا ہے, جو این ہوتا ہے, اس کے اوپر جب پیش یا زیر زبر ہوتی ہے نا, جب ہم سرو کرتے کبھی ہم اس کو جب زیر ہوتی ہے تو کرتے ہم اس کو زبر بنا دیتے ہیں. زبر کو ہم زیر بنا دیتے ہیں. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک لفظ ہوتا ہے ہمارے پاس عدل, ایک ہوتا ہے عدل, ایک ہوتا ہے لبس, لبسن, ایک ہوتا ہے لبسن. دیکھیں ہے تو روٹ ورڈ, سیم روٹ ورڈس ہیں, لیکن کیونکہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ اس کا زیر زبر کی وجہ سے ان کی میننگ بدل. ایک ہوتا ہے عدل, کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جس چیز کا حقدار ہے اس کو اس کی جگہ پر رکھنا, اور دوسرا عدل ہوتا ہے شرک کی میننگ میں آتا ہے کہ کسی کو کسی کا یعنی وہی کسی کے ساتھ شریک بنانا. ہو گیا نا, بدل میننگ ہو گئی نا. ایک ہوتا ہے لبسن یعنی لباس, ایک ہوتا ہے لبسن یعنی وہی دھوکہ دینا. ایک ہوتا ہے علم. میں ابھی اس کو لکھتی ہوں, اس کو نوٹ کر لیجئے گا. کیوں میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ زیر زبر کو بہت دھیان سے دینا ہے, دیکھنا ہے, کیونکہ یہ ہمارے کام کی ہے. ایک ہوتا ہے علم, اوکے, ایک ہوتا ہے علم. کیا ہے اس کی میننگ, دونوں میں فرق؟ روٹ ورڈز کیا ہے, سیم ہے نا, اس پر فرق ماسی کے روٹ ورڈ سے. ہاں, اور ایک کا سکھانا ہوگا ایسے ہی ہے نا, علم سکھانا. علم نصیبین, جب علم جب باب پہ جاتا ہے نا, آپ انشاءاللہ باب پڑھو گے, جب وہ ہو جاتا ہے علم تو سکھانا ہو جائے گا, تشدید آئے گی تو, ورنہ نہیں. اچھا, علم کا مطلب ہوتا ہے نشانی, سائن, جسے فرینچ میں کہتے ہیں نا ٹیمپو, علم آتے ہیں. علم سے نکلا ہے. علم جو ہوتا ہے نا, جھنڈے کو کہتے ہیں نا, یہ سائن ہے, یہ نشانی ہے, اس کو کہتے ہیں. علم کا مطلب ہوتا ہے نالج. اچھا, جب ہم اس میں آتے تو ہو جاتا ہے یا علمو. جب آپ نے دیکھا یا علمو تو یہ ہو جائے گا علم کی میننگ میں. یا علمو
या ले मो हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि साइन, निशानी, झंडा। एक और मैं आपको मीनिंग बताती हूँ इसकी ताकि हमारी और क्लियर हो। रब्बुल, कुरान में देखें आप थोड़ा सा सूरह अलहम्द खोल के देखेंगे, रब्बुल आलमीन है या रब्बुल आलमीन है। देखिए ये मिटा दो कोरोना। हाँ आलमीन, आलमीन, लाम पे जबर है, जेर है, आलमीन जबर है। पक्का? जी अच्छा, रब्बुल आलमीन, आलमीन, हाँ, तमाम आलम। आलमीन, हाँ, तमाम आलम, वही जिसे मैंने अभी कहा ना, साइन, उसकी निशानियाँ, उसकी मखलूकात। लेकिन जब इसको आप कहेंगे रब्बुल आलमीन तो क्या हो जाएगी मीनिंग? सारे आलमीन करो। जेर, अगर जेर दे दी तो क्या मीनिंग होगी? आपको पता है क्या मीनिंग हो जाएगी? बहुत डिफरेंट मीनिंग हो जाएगी। क्या? रब्बुल आलमीन, पूरी 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 कायनात की जितनी 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 ये जो मखलूक है, जो बनावट है, जिसके अंदर एक पूरी का पूरी मखलूकात बसती हैं, उसका रब। लेकिन जब हम कहते हैं रब्बुल आलमीन तो इसका मतलब होता है इल्म रखने वाले लोगों का रब। आलिम कहते हैं, आलिम, आलिम यानी इल्म रखने वाले, आलमीन यानी प्लूरल, बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले, अल यानी खास। हाँ तो लेम लाम वो आ जाएगा ना, के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये वाला, ये जैसे तो नहीं अल होगा। खास के लिए है, ले आलमीन होता ना, ले लिल आलमीन। हाँ, लिल आलमीन होता। तो आपने देखा आलमीन और आलमीन में जमीन और आसमान का फर्क हो जाता है। जैसे अगर आपको याद हो तो दुआ पढ़ रहे थे माह रमजान में, सब लोग पढ़ रहे थे अजल, असल में था अजल। जब हम कहते हैं ना हम ऐसे कहेंगे अल अजल के बजाय हम कहेंगे अल अजल। जैसे अभी तायरा भी ने इतना अच्छा नोटिस किया, तो अजल यानी मौत, जल्दी से मौत दे दो मुझे, मेरे जिस काम में है जल्दी से मौत आ जाए, खत्म हो जाए। अजल यानी जल्दी जल्दी करो, अजल यानी जल्दी जल्दी स्पीड के साथ, अल्लाह अभी 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 कर दो, अजल यानी मौत, दोनों में फ़र्क होता है। तो जब हम पढ़ते हैं ये अरबिक ज़बान या उसमें तजवीद पढ़ते हैं या जो भी कुछ पढ़ते हैं, इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मरियम, आपने मुझे कहाँ से कहाँ भेज दिया। आपने यह के वो करके चले अभी। अच्छा है ना, अपन इतना सारा सीखने को मिल गया। थैंक यू। चले जी, अभी इसको याकुमो को है तो ये लास्ट तक को ही रहेगा, के है तो ये लास्ट तक के रहेगा, वरना मीनिंग बदल जाएगी। इंशाल्लाह। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहकुमु, यहकुमानी, यहकुमुना, तहकुमु, तहकुमानी, यहकुमुना, तहकुमु, तहकुमानी, तहकुमुना, ये आ जाएगा। तहकुमुना, मून क्यों होगा? तहकुमु, एक दफा मुझे यही पता था। पता है क्या होता है, जब हम ज़ेर ज़बर पे ध्यान देते तो प्रोनाउन तो हाँ मेरे साथ तहकुमीना। हाँ, बहुत अच्छा। चले, तहकुमीना, तहकुमानी, तहकुमना, बहुत अच्छा। हाँ, अहकुमना और ना मुझे आज तक समझ में नहीं कि नून कहाँ से पैदा हो जाता है। मैं वही ढूंढ रही थी कि ये कहाँ से आया है, ये मुझे मिले नून, मैं इसको पूछूंगी तुम आए कहाँ से भाई। चले, आकुमो नाकुमो, बहुत बहुत अच्छा। चले, इसके बाद है बाअसा। किसका था बाअसा? मेरा हाँ, था।
मैं पहले एक दफ़ा सॉरी फरा एक मिनट में हकमा की रूट मीनिंग बता दूं. हाँ, हकमा की जो रूट मीनिंग होती है वो की मैंने ज़का की भी रूट मीनिंग नहीं बताई ना. देखिए जो आपने नहीं बताया, मतलब बताया ज़कात का. वो दाल जाल वाला रा जा, हाँ रा और जा वाली जो ज़कात होती है, जैसे ज़कात जिससे निकलता है या युज़कीहिम जो इसमें है, इस ज़काया का मतलब होता है कि आप देखो कि अगर किसी दरख्त या झाड़ के आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी हो जो उसको बढ़ने ना देती हो और उस गंदगी की वजह से उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हो, तो उस गंदगी को हटाना, साफ करना और उस दरख्त या उस झाड़ जो है उसके ऊपर दवा का स्प्रे करना कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब मर जाए, ख़त्म हो जाए और वो दरख्त जो है वो साफ हो जाए, आगे और अच्छी तरह से ग्रोथ करे. इस सारी कैफियत को कहते हैं ज़का. दोबारा बताएंगी थोड़ा सा? ठीक है, मैं बताती हूँ. ठीक है, थोड़ा इसका शॉर्ट सा वो बता देना. शॉर्ट सा. ओके. किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए किसी चीज, अच्छा सोचती हूँ इसका शॉर्ट. किसी चीज का पाक करना, साफ करना. मैं बताऊं? हाँ जी 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 खाने जी स्प्रे जी 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 तारा बिन, हाँ हाँ बिल्कुल सही था. दरख्त की काट छाट करना ताकि वो फले फूले. हाँ ये बहुत अच्छा. ये भी अच्छा. हाँ, मैं जब से पाकिस्तान से आई हूँ ना तब से मेरी उर्दू इतनी ख़राब हो गई लंबी लंबी बातें हो गई. चले, बहुत अच्छा कि ज़का का मतलब होता है कि हर वो चीज़, हर वो गंदगी और हर उस रुकावट को दूर करना जो आगे बढ़ने में रुकावट बनती है, तो उसको कहते हैं ज़काया. और बहुत अच्छा लिखा था फरा आपने. युज़कीहिम की मीनिंग थोड़ी सी चेंज है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. चले, अभी हम आते हैं हकमा. हकमा की रूट मीनिंग क्या होगी? हम कहते हैं कुरान हकीम है, अल्लाह हकीम है, हिकमत वाला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीम है. तो हकमा की रूट मीनिंग क्या होगी? पता है हकमा की रूट मीनिंग, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती. हकमा की रूट मीनिंग होती है रोकने वाला, मना करने वाला, रोकने वाला और मना करने वाला. और हकीम की जो रूट मीनिंग होती है, हकीम किस वजन पर है? हकीम का वजन क्या होगा? आप सब बता सकते हैं साथ में. हकीम का वजन क्या होगा? हकीम, हकीमुन, क्या वजन होगा? पहला लफ्ज, दूसरा लफ्ज, तीसरा लफ्ज, एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा. क्या होगा हकीम का? नहीं, फाइलुन होता तो फिर अलिफ होता है. आपको अलिफ फईलुन. जी तमीरा पा. ये फाइलुन. फरहा हाकिमुन. हाकिमुन कह रहे हैं आपके. हाकिम. हकीम, हकीम, हकीमुन, हकीम. हाँ फईलुन. बहुत अच्छा ताहिरा बहन. मैं सुन रही थी आपका, काफी देर से आप कह रहे थे, मैंने कहा आखिर में बोलती हूँ ताकि सबका पहले सुन लूँ. नसीम बहन ने भी सही कहा, और ताहिरा बहन ने भी, और फराह ने भी. मरियम ने तो कुछ भी नहीं बोला. मरियम क्या होगा? मैंने तो फाइलुन बोला था ना पहले. हाँ नहीं होगा फाइलुन, हकीमुन होगा. फईलुन, देखिए मैंने आपको उस दिन बताया था ना. रहीमुन, हाँ था ना आपको. करीमुन, हाँ. हकीमुन, ये किसके वजन पर था? मैं इसको फिर से वजन निकालती हूँ ताकि हमारे लिए अच्छे से हो जाए. क्या वजन था इसका? हकम है ना. हकम, हकीमुन. इसमें पहले लफ्ज के नीचे आएगा फा जबर के साथ, काफ एन जेर के साथ, प्लस में या एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा आ जाएगी. फिर उसके बाद मीम के है, तीसरा लफ्ज है तो लाम, हाँ हो जाएगा फईलुन. मैंने आपको बताया था कि फईलुन हकीमुन ये आएगा ना. हाँ. ये है. रहीमुन, करीमुन, हकीमुन, बईसुन, रसीलुन, अलीमुन, ये सब के सब फ़ईलुन के वज़न पर आएगा. इसको कहते हैं सिफ़त मुशब्बा. आप वीडियो में सुन लीजिएगा ताकि आप इसको नोट कर लीजिएगा. इसको कहते हैं, इस वज़न पर जो भी लफ्ज़ होगा उसको कहते हैं सिफ़त मुशब्बा. यानी एक ऐसी सिफ़त है, एक ऐसी क्वालिटी है कि जिसके अंदर वो पाई जाती है वो सिफ़त मज़बूत होती है, पायदार होती है,
ہمیشہ سے ہوتی ہے, ہمیشہ ہی ہوتی ہے, کبھی اس کو نکال نہیں سکتے, کبھی کم نہیں کر سکتے, کبھی ختم نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے امام خمینی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ امام خمینی کی الحمد کی تفسیر ہے, میں نے وہ پڑھی تھی, بہت بہت مشکل ہے. جب امام خمینی الحمد کی تفسیر کرتے تھے نا, اس الحمد کی, تو بہت بڑے آیت اللہ علماء بیٹھ کے کہتے تھے کہ امام خمینی سے کہتے تھے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا, اتنی مشکل تھی. ایک دفعہ خود امام خمینی کہتے ہیں کہ میں ممبر پر گیا, یعنی امام خمینی کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا ہے, یا ان کو کچھ سمجھانا تھا, اللہ کو کچھ سمجھانا تھا. امام خمینی کہتے ہیں کہ میں ممبر پر گیا, مجلس پڑھنی تھی, تقریر کرنی تھی, ممبر پر گیا, مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا, کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا. وہ امام خمینی کہتے ہیں کہ میں ممبر پر بیٹھا نا, حتیٰ کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میرا نام امام خمینی ہے, میرا نام خمینی روح اللہ خمینی ہے. وہ کہتے ہیں جیسے میں ممبر سے نیچے آیا نا, مجھے سب یاد آ گیا. اس وقت مجھے اور زیادہ یہ پتہ چلا کہ جو بھی ہمارے پاس علم ہے وہ اللہ کا ہے, وہ جو بھی دیا ہوا ہے وہ اللہ کا ہے, جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو صفت کوالٹی ایسے چھن جائے اس کو صفت مشبہ نہیں کہتے, وہ ہوتی ہے ٹیمپریری. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. جی ہاں, یعنی دائمی علم, یعنی ہمیشہ دائمی صفت علم نہیں کہیں گے پہلی دفعہ. اچھا, پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں, آپ نے بہت اچھا کہا, دائمی صفت. کون سی صفت؟ حکمت کی صفت, علم کی صفت. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے آیت اللہ ہیں, کبھی بڑے بڑے آیت اللہ کو علیم کہا ہے کسی نے؟ نہیں کہا نا, عالم کہتے ہیں. عالم جو ہے وہ اسم فاعل ہے, فاعلن کے وزن پر. اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا, فاعلن کے وزن پر جو بھی چیز آئے گی, جیسے راحمن, اوکے, ہم راحم ہیں. حاکمن, باعثن, راسلن, یہ جو فاعلن کے وزن پر ہوگی, یہ دونوں کی دونوں جو ہے, یہ فاعل وہی صفت مشبہ بھی فاعل کی طرح ہے, کام کرنے والا. فاعلن بھی کام کرنے والا, لیکن جب فاعلن کے وزن پر ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری, تھوڑے ٹائم کے لیے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ چھن سکتا ہے, لیکن یہ عالم جس سے فاعلن کے وزن پر عالمن ہے. ہم عالم کہتے ہیں عالم کو کیونکہ اس کا علم خود کا نہیں ہوتا, دوسروں کا دیا ہوا ہوتا ہے. اللہ نے دیا ہے, جب چاہے وہ چھین سکتا ہے, لمیٹڈ ہے, بہت تھوڑا ہے, خود کا نہیں, اس کا پرسنل نہیں ہے, اس لیے وہ فاعلن کے وزن پر ہے, عالمن. علیمن یعنی اس کا علم خود کا ہے, اس کی ذات کے اندر موجود ہے, جب سے وہ ہے تب سے وہ علم ہے, کوئی چھین نہیں سکتا, کم نہیں ہو سکتا, بھول نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں صفت مشبہ, اور یہ ہمیشہ آتی ہے فعیلن کے وزن پر, پہلا حرف, دوسرا حرف, اور پھر دوسرے حرف کے بعد یا آتی ہے, اور پھر تیسرا حرف. یہ ہے صفت مشبہ. کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ ناؤن ہے کیونکہ تنوین سے. چلیں, یہ ہو گیا ہمارا حکیم. حکیم کی جو اصل میننگ ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں حکیم صفت مشبہ. حکیم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص یا وہ ذات یا وہ جو ہر وہ چیز جو میرے دنیا کے لیے, میری آخرت کے لیے, میرے جسم کے لیے, میری روح کے لیے, میرے ایمان کے لیے, ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے اس سے روکنے والا, اس کو کہتے ہیں حکیم. قرآن حکیم ہے, اللہ حکیم ہے, رسول حکیم ہے. اس کے علاوہ اس کی ڈیفینیشن ایک بار پھر بتائیے گا حکیم کی. حکیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے جسم کے لیے, ہماری روح کے لیے, ہماری دنیا اور آخرت کے لیے, ایمان کے لیے, ہر وہ چیز جو ہمیں نقصان دیتی ہے اس سے منع کرنے والے کو حکیم کہتے ہیں. جی جزاک ٹھیک اللہ. ہے, تھینک یو. اچھا, یہ ہو گیا ہمارے ورڈز کی میننگ. کیوں میں نے آپ کو بتایا؟ کیونکہ ہمارے پاس سورہ جمعہ میں یہ آتے ہیں. تو ابھی ہم اس کو صرف کرتے ہیں بعث کو. بعث اور رسلا. رسلا کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا. بعث کا مطلب ہوتا ہے ایک فکس ٹائم پر کسی چیز کو رکھا ہوا ہے, کسی فکس ٹائم پر اس کو نکال کر ظاہر کرنا. اس لیے مبعوث تقریباً انبیاء کے لیے آتا ہے, رسل سب کے لیے آتا ہے. چلیں جی, یبعثو. یبعثو. ہاں,
यब असो को सर्फ यब असो, यब असाने, यब असूना, तब असो, तब असाने, तब असना, तब असो, तब फिर असाने, से पढ़ा। हाँ ओके, यब असो, हाँ यब असाने, यब असूना, बहुत अच्छा। तब असो, तब असाने, तब असना, क्यों तब हो रहा तब है? असो, जी तब क्यों हो रहा है? सॉरी यब असना, हाँ यब असना सही। तब असो, तब असाने, तब असूना, तब असीना, हाँ तब असीना, तब असाने, तब असना, अब असो, नब असो। बहुत अच्छा। तनवीर आपा एक दफा आओ आपकी तरफ। जी मैं भूली नहीं। हाँ हाँ नहीं बोले बोले एक दफा मेरा सबह था ना सबह चलिए एक दफा सर्फ यस्बहु हाँ हाँ अब है को बोलूं मैं सही तरीके जी यस्बहु यस्बिहानी यस्बिहुना तस्बिहु तस्बिहानी तस्बिन्ना तस्बिन्ना तस्बिहु तस्बिहानी तस्बिहुना तस्बिन्ना तस्बिहानी तस्बिन्ना सही है थोड़ा सा फिर से करें। वापस से दोबारा से हाँ कि थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन शुरू से करते हैं। तो ताहिरा बेन, शुरू से। नसीम बेन और फरहा, मरियम और नसीम बेन आप थोड़ा सा नोट करेंगे। मैं 2 मिनट में बुक लेकर आती हूँ जो हमारा आज का न्यू लेसन है। यस्बिहु जी आप यस्बिहानी यस्बिहुना तस्बिहु तस्बिहानी तस्बिन्ना यस्बिना, मैं भी यही गलती कर यस्बिन्ना रही थी। हाँ हाँ जी यस्बिन्ना तस्बिहु तस्बिहानी तस्बिहुना तस्बिन्ना तस्बिहीना है ना जी तस्बिहानी तस्बिन्ना अस्बिहु नस्बिहु सही है क्या नहीं सही अरे बताओ तुम लोग ना मेरे ख्याल से तो सही है, बाकी मकसूद नहीं आप कोई और भी बताएं जी सही करें सही है ना अब तो सही है जी अभी ठीक है ये बस रवानी में जाता है ना तो बस जाता ही रहता है ये जो भी जैसे शुरू में मैंने वजन बनाया था माफ हाँ हाँ दिमाग माउस हो जाता है कभी हाँ। कभी है मुश्किल ना अब हर या दफा फिर कुरान तो पढ़ते इतना हैं अच्छा वजन है पता भी था लेकिन फिर नहीं दिमाग काम कर रहा था। बस खुदा से दुआ करे बस आ जाए हमें सही तरीके इलाही से आमीन। परवरदिगार। इंशाल्लाह हमने सूरह जुमा शुरू किया है ना, तो आप देखोगे आपको आ जाएगा। और इंशाल्लाह मैं सूरह जुमा के साथ साथ मैं आपको कुछ अरबिक के भी ग्रुप में वर्ड्स भेजती रहूँगी, सेंटेंस। अच्छा मज़े की बात क्या है कि बहुत अच्छा सर्व किया तनवीर आपा। आप जितने भी हमारी बहनें थे कि असल में क्या है, क्यों मैं आपको इतना सर्व करवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ 20-25 साल से मैं यही देखती हुई आ रही हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको अगर हमने छोड़ दिया ना तो हम भूल जाते हैं। लेकिन जिस तरह से हम सर्व कर, मुझे पता है कि 2 सीखों के बाद फिर गड़बड़ होगी, 3 सीखों के बाद फिर गड़बड़ होगी, ये नॉर्मल है तनवीर आपा, आप परेशान नहीं। मिस्टेक होगी गलती होगी तो आगे जाएगी। नहीं मिस्टेक होगी तो ही आएगा। हाँ, अगर मुझसे नहीं ही हो करती जाती जाऊंगी तो मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट होगी फिर तो मैं अरे ब्रिलियंट से भी पता है, अभी तक मुझसे कभी कभी सर्व करते करते ना हो जाती है, तो फिर नॉर्मल है ना, थोड़ा बहुत तो एंजॉय करते अपनी मिस्टेक्स को। चले अच्छा अभी आ जाते हैं हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने कर लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोग पहले माजी को कर लिया है। मैं आपको 2-3 लफ्ज़ दूंगी, उसका सिर्फ आपको रूट मीनिंग नहीं, सिर्फ उसका तर्जुमा करना है, टू द पॉइंट, ठीक है। चले नसीम में मैंने आपसे शुरू किया था तो अभी आपसे ही करती हूँ। चले नसीम बेन इसको आप तर्जुमा करें, तखरुजु, टू द पॉइंट। माफ ये क्या लफ्ज लिखा आपने? नहीं वजन नहीं निकालना, इसका तर्जुमा करना है, तखरुजु, तखरुजु इसका मीनिंग करनी है। तुम एक मर्द निकलते हो। बहुत अच्छा, तुम एक मर्द निकलते हो या निकलोगे। हाँ खरज खरज
खरजती। नसीम बेन जी ये क्या है फरज ती तुम नहीं आएगा जी 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 तुम एक औरत निकलती हो निकलती या हो। निकलोगी ये माजी का है ना हाँ ये माजी का है वो एक या तुम ही आएगा इसके लिए हाँ तुम ही आएगा। एक औरत निकलती हो तुम निकलती एक औरत हो निकलती हो फिर इन दोनों में क्या फर्क हो जाएगा? निकलती हो नहीं हाँ निकलोगी पास्ट औरत टेंस निकलोगी पास्ट टेंस जी 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 निकलोगी ना या पास्ट निकली पास्ट पास्ट में हम क्या कहेंगे? निकलती थी। हाँ तुम एक औरत सॉरी, निकली बस कह दे तुम एक औरत निकली या हाँ निकली हाँ बिल्कुल सही निकली। निकली। हाँ निकली। चले अब नसीम बेन इसको आप करो। ला तखरुजु आता तुम एक बात नहीं निकले निकलते हो या निकलो सही निकलते हो। चले ला तखरुज ला तखरुज तुम एक बात ना निकलो ना निकलो। बहुत अच्छा फिर अम्र हो गया ना। चले बहुत अच्छा। चलें एक जी बात जी अभी इसको करती हूँ। तायरा बेन आपसे तन तन ज री न जी क्या है ये तंजुरीना। तुम एक इंतजार कर रही हो। हाँ बहुत अच्छा। तन इंतजार कर रही हो या देख रही हो। बहुत बहुत अच्छा तंजुरीना। चले नजर तो लव समझ क्या लिखा हुआ है? नजर तो नजर वो एक औरत देख रही है। वो कहाँ से पता चला कि वो औरत की बात हो रही है? नजर तो नजर तो नजर तो मैं देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ। नजर तो मैं देख रही हूँ। मैं मैं देख रही थी। हाँ मैं मैंने देख- देखा। अच्छा जब देख रही थी होगा ना तो फिर उसमें लेकिन अभी आप जब कह रहे मैं देख रही थी और तनवीर आपा ने भी वही किया था कि मैं जी। निकल रही वो एक औरत तुम एक औरत निकल रही थी तो ये है ना पास्ट कंटिन्यू हो जाता है। इसको कहते हैं फेले माजी इस्तमरारी। फिर उसका एक अलग कायदा और कानून होता है। कंटिन्यूअस हो जाता है। हाँ कंटिन्यू हो मैंने जाएगा। मैंने देखा था। मैंने देखा था या मैंने देखा बिल्कुल सही। चले अभी इसको करती हूँ। ला तंजुरीना तुम एक औरत नहीं निकली थी। निकलना क्यों तुम एक औरत नहीं इंतजार कर रही थी या नहीं देख रही। हाँ बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने वो जो खराजा की मीनिंग की ना इसका मतलब है कि मैं अगर एक को लफ्ज दे रही तो उस पर सबका फोकस है तो बहुत खुशी हुई इस पे। चलिए ला तंजुरीना तुम एक औरत नहीं देख रही हो या नहीं इंतजार कर रही हो। ला तंजुरी मैं नहीं देख रही। तंजुरी नून नहीं। था प्लस में हमने उस नून हाँ। को काट दिया। ला तंजुरी तुम एक औरत मत देखो। हाँ बहुत अच्छा ऑर्डर हो गया। तुम एक औरत मत देखो। चले जी
हम आते हैं तनवीर आपा की तरफ. तनवीर आपा, बहुत तंग किया है ना आज मैंने आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मेरी वो होगी ना, प्रैक्टिस हो रही है ना. जब हम किसी को अपना समझते हैं ना, उसको बहुत तंग करते हैं, तो फिर अच्छा भी बिल्कुल, लगता है. थैंक यू थैंक यू. नहीं नहीं, चले. हमला, हमला का मतलब होता है उठाना, ठीक है? हमला जी जी. क्या होगी इसकी मीनिंग? वो एक मर्द उठा रहा है. वो एक मर्द उठा रहा है. बहुत अच्छा. उठा रहा है होगा. उठा रहा था, फिर वापस हो जाएगा. उठा, वो एक मर्द, पास्ट टेंस आ गया ना. हाँ, ये past past tense में tense वो है, एक हाँ. मर्द ने उठाया बहुत या अच्छा. उठा रहा था. हाँ बिल्कुल सही, उठाया. मैं समझ गई. हाँ, उस एक मर्द ने उठाया. हम्म. सही, बिल्कुल सही कि एक मर्द ने ये काम किया. हमला, उस एक मर्द ने उठाया. यहमिलून, वो बहुत सारे मर्दों ने उठाया. तो ये पास्ट नहीं हो जाएगा इसका? ये प्रेजेंट है या पास्ट है तनवीर आपा? नहीं, ये तो ये प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट है. उसका फेले मुजारे हैं. फेले जी. मुजारे. तर्जुमा कैसे करेंगे इसका? वो बहुत सारे मर्दों ने हम्म. उठाया. उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं बहुत सारे मर्द. हाँ, बहुत अच्छा. उठा रहे हैं वो बहुत ज्यादा मर्द. ला यहमिलून, वो बहुत सारे मर्द हम्म, नहीं उठा रहे हैं. नहीं उठा रहे हैं बहुत ज्यादा मर्द. ला यहमिलून. उठा, ना उठाओ बहुत सारे मर्द. हाँ, मत उठाओ, मत तुम उठाओ. मत उठाओ, तुम मत उठाओ, तुम बहुत तुम सारे. होगा. ये तनवीर वो होगा ना. तो वो होगा. मत उठाओ, मत उठाओ वो बहुत सारे मर्द. हाँ, मैं समझ गई माशाल्लाह से आपका, पर थोड़ा सा आपको बोलने में, देखिए बोलने में हम कैसे बोलेंगे? ना उठाए वो ज्यादा मर्द. ना उठाए. हाँ, मत उठाए या ना उठाए, क्योंकि पता है चाहिए जब हम- ऑर्डर में आ गया. ना ऑर्डर उठाए में आ बहुत गया. सारे हमें मर्द. थोड़ा जी, जी. मुश्किल होगा जब हम नहीं को मुगाइब में करेंगे और अम्र को मुगाइब में करेंगे ना, तो थोड़ा हमें मेहनत होगी, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा. चलें जी, अभी हम आते हैं फरहा जी. जी. फरहा को क्या, कौन सा लफ्ज दूं? जो आप पसंद. चलिए, हाँ, मैं सोचती हूँ आपको. अच्छा, पता है हमें हम जो है ना ज़की को नहीं कर सकते, ज़कात को नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें है ज़का या का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, तो उसके कानून अलग होता है. चलिए, अब बासा को ही करती हूँ मैं थोड़ा सा आपके लिए. ठीक है, बासा को करती हूँ. जी. चलिए, तुम. तुम. हाँ, बास तुम. इसकी मीनिंग ये थी ना, किसी चीज को चूज करके भेजना. हाँ बिल्कुल सही. तुम बहुत सारे मर्दों ने चूज करके भेजा. बहुत अच्छा भेजा. उर्दू भी बहुत अच्छी है मेरी तो बहुत. चले, बस तुमको अभी हम करती हूँ. मैं क्या करूँ. चले, यब अफ न. उस एक औरत ने, वो एक औरत चूज करके भेज रही है. एक औरत कहाँ से पता चला फरा? सॉरी बहुत सारे होते हैं.
बहुत सारी औरतें चूज करके भेज रही हैं। एक और जलजला मचाती है तो बहुत ज्यादा उठाती है। चले चले ला। मुझे बोर्ड नहीं नजर आ रहा हो अल्लाह। कौन है ये? ताहिर और रज़ा, इनकी स्क्रीन नजर आ रही है ओहो लेकिन अब। हाँ अब दिख रहा है। ला यक असना। हाँ वो बहुत सारी औरतें चूज करके नहीं भेज रही है। बहुत अच्छा। और अब हम इसको फिर अम्र बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? नून को निकालेंगे फरा या नहीं निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। बहुत अच्छा, क्यों नहीं प्रोनाउन निकालेंगे? है ना, बहुत प्रोनाउन नहीं है। बहुत अच्छा, ये प्रोनाउन है, हम इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि प्रोनाउन नहीं निकलता। जो नून निकले हैं वो नून निकले जो पेश की जगह पर थे। जी तो ला वो या बहुत सारी औरतें चूज करके नहीं भेजे। हाँ ना भेजे तो इसमें सेम लगता है। बहुत अच्छा। चले जी। अच्छा अभी हम वासा का हम मीनिंग क्या लिखेंगे? सही तरीके सही मायने भेजना, बस भेजना? सिंपल। हाँ भेजना, बस भेजना। हाँ ज्यादातर होता है जैसे नहीं कबर से किसी को फिक्स टाइम पे निकालना होता है बाहर, उसको कहते हैं बासा। या अंबिया को अल्लाह ने रखा हुआ है, महफूज करके रखा और उनको फिक्स टाइम पे भेजना है इस दुनिया में, उसको कहते हैं बासा। तो बस आप ये कह सकते हैं तनवीर आपा के भेजना, ठीक है। भेजना। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो हमारे जहन में रह जाते हैं, उनकी पूरी मीनिंग पर हम उसकी लिख नहीं पाते। जैसे ज़काया की मीनिंग है, जैसे कर्ज की मीनिंग है। आपको पता है कर्ज की रूट मीनिंग क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? कर्ज की रूट मीनिंग क्या होती है? कर्ज नहीं लेते हम सूरह मुज़म्मिल में हाँ, अल्लाह लेते हैं। कहता है कर्ज़ा कर्ज़ अल्लाह हसना। हम नहीं कर्ज लेते, जिसको कहते हैं नसीम में, जिसको उर्दू में कहते हैं उधार। तो क्या मीनिंग होती है कर्ज की? रूट मीनिंग, इसकी रूट मीनिंग चले इसकी रूट मीनिंग में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमने अभी तक इसकी रूट मीनिंग नहीं की है। थोड़ा सा बताती हूँ। असल में कर्ज का मतलब होता है अगर आपके पास कोई एप्पल है या कोई फ्रूट है या कोई चीज़ है, आप उसको उसमें से दांतों के साथ, कोई भी आपके पास चीज़ है, आप क्या करते हो? आपने उसको दांतों से एक उसमें से बाइट लिया, उसको काटा अपने दांतों से और उसके एक टुकड़े को जुदा किया उससे। दांतों से काट कर किसी के एक टुकड़े को जुदा करने को कहते हैं कर्ज। तो ये कर्ज क्यों इस मीनिंग में, उधार की मीनिंग में आता है? तो असल में इसलिए कहते हैं कर्ज कि कोई इंसान अपने माल में से थोड़ा हिस्सा तोड़ कर किसी दूसरे को निकाल के देता है, इसलिए उसकी मीनिंग हो जाती है कर्ज। सही, ठीक है जी। हम लिखे दांतों से काटना। नहीं, हम तो बस वही उधार ही लिख सकते हैं तनवीर। ना पर इसका तो रूट मीनिंग तो यही हो गया ना, दांत, हाँ बहुत अच्छा आपने कहा। दांत से काट कर टुकड़े को अलग करना, दांतों से काट कर किसी के टुकड़े को अलग करना। तो लेकिन ये तो बहुत अजीब मीनिंग हो जाएगी ना। और फिर हम लिखेंगे हाँ मैंने लिखा है किसी चीज को दांतों से काट कर किसी दूसरे को देना। नहीं, दूसरे को देना नहीं आएगा अभी नसीब में। अभी आएगा कि दांतों से काट कर किसी चीज का टुकड़ा अलग करना। हाँ कर्ज कहते हैं क्योंकि वो टुकड़ा हम किसी को देते हैं ना, वो जो काटा है दांत से और उसको दिया है, तो फिर उसको कहते हैं ये कर्ज। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जिसकी मीनिंग हमें पता होती है, हमारा जहन इसको कबूल करता है कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन उसको बोलने में हमें कभी कभी मेहनत होती है, हम बोल नहीं पाते। अब इसका आप तर्जुमा क्या लिखें? कर्ज का कर्ज ही लिख देंगे ना, इतना लंबा कौन करे। चलिए सही। तो बस हमें भी इसी तरह से आ जाते हैं। अभी हम आते हैं मरियम की तरफ। मरियम के बाद फिर आऊँगी नसीम बहन की तरफ। मरियम असल में लहका का मतलब होता है किसी के साथ ज्वाइंट हो जाना। लहका मुल्हिक होना कहते हैं ना उर्दू में भी, मिल जाना जी है ना। कोई जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ज्यादा लोग आगे जा रहे हैं तो दौड़ कर एक और आता है और उनके साथ मिल जाता है, उसको कहते हैं लहका। ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन कर लेना। हाँ अच्छा मैं इसको करती हूँ, इसको आप करेंगे। लहका
क्या होगा मरियम? वो दो मर्द ज्वाइन करे। ज्वाइन करें फिर सही अम्र बोला होगा। आपा मैंने? पहले दो तो बहुत अच्छा आपने बोला कि यहाँ दो की बात हो रही। पहले अम्र है, पहले माजी है, मुजारे है, क्या है? वो दो मर्द ज्वाइन किया, वो दो मर्द मिले। हाँ बहुत अच्छा, मुल्हिक हुए, उनके साथ ज्वाइंट हो गए। हाँ अभी हो जाएगा। मैं इसको करती हूँ यलहकाने। इसको क्या करेंगे? यलहकाने, यलहकाने। मरियम? जी वो यलहकान, वो दो मर्द ज्वाइन कर रहे थे। कर रहे थे, कर रहे हैं। नहीं, वो दो मर्द ने ज्वाइन किया। मैं बताऊं सर? जी जी जी। वो दो मर्द ज्वाइन करते हैं या करेंगे? मिलते हाँ हैं या हाँ मिलेंगे? मरियम मुझे लगता है हमारी थोड़ी थोड़ी उर्दू वो हो गई है ना। प्रेजेंट में पता है, मुझे पता है माशाल्लाह सबको आता है बोलना, पर क्या कहते हैं इसको, फिट करना नहीं आता, फिक्स करना नहीं आता कि हम इन लफ्जों को कैसे इनके साथ फिक्स करें। एक्चुअली क्या है, उर्दू स्पीकिंग में नहीं है ना हम लोग, हाँ तो आगे गुजराती में बिल्कुल ही हमारी उर्दू हो गई है, बिल्कुल खराब हो गई। सही। तो इसलिए पता है नहीं तनवीर आपा, जो उर्दू वाले हैं ना उनके जी। साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कभी कभी। तो आपने देखा होगा कि अभी जब हम कर रहे थे तो तायरा बहन को भी थोड़ी सी मेहनत हो रही थी, मेहनत तो नहीं हो रही थी लेकिन वही उर्दू के लफ्ज़ों को फिट करना, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत मुझे ज़का की मीनिंग बता दी ना फटाफट, और नसीम बहन को भी आपने देखा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें लफ्ज़ नहीं मिल रहे होते कि हम फिट कर सके, फिर हमारा जहन इस चीज़ को कबूल करता है कि ये चीज़ है ना। तो ये इसलिए मैं इसको ऐसे प्रैक्टिस करवाती हूँ, और आपको नहीं बल्कि सब जितने मेरे अभी जो बड़े 10 साल हो गए जिस ग्रुप को, वो भी अभी तक इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ। नहीं, मैं कहती हूँ नहीं, इसको ऐसे करो, गहराई में करो। तो यलहकानी क्या हो जाएगा मरियम? वो दो मर्द ने ज्वाइन किया तो पास्ट हो गया। वो दो मर्द ज्वाइन करे। मरिया फिर से ला को पहले हटाती हूँ, इसको भी हटाती हूँ। अब करें प्रेजेंट टेंस में, मरिया उर्दू में करे प्रेजेंट टेंस। चलिए, वो दो मर्द ज्वाइन करे तो फिर ऑर्डर हो गया। नहीं, अच्छा, वो दो मर्द ने ज्वाइन किया, पास्ट हो गया। मतलब अभी की बात करनी है ना, अभी हाँ करते। अभी करे मरियम प्रेजेंट कंटिन्यूस। वो दो मर्द ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ Yes. देखा कितना अच्छा। मरियम, अल्लाह, मरियम आप फराह के फरमा बरदार निकले। मेरी दोस्त है ना, इसलिए मेरी फरमादार है। मैं समझ गई माशाल्लाह। आप कभी कभी, जैसे मैं भी सबको कहती हूँ कि काश आप सब हमारी क्लास में होते ना, इतना क्लास में मज़ा आता है जब हम क्लास मस्जिद में करते, इतनी मस्ती करते हैं और पढ़ के मज़ा भी आता है। तो उसमें भी ग्रुप बने होते हैं, दो फ्रेंड्स बैठी हुई होती हैं और एक दूसरे को घूर के देखती हैं, अगर कोई गलत बताए ना वो दूसरी उसको घूरेगी तो आगे से सही बता देंगे। तो ये दोस्ती को पता चल गया कि हाँ दोस्ती है। चले जी, अभी हम आते हैं नसीम बहन के पास। नहीं अभी रहता है ना मरियम का। जी, ला यलहका, ला यलहका। मरियम, जी, ला यलहका ने, नहीं ज्वाइन हो रहे हैं वो दो मर्द। बहुत अच्छा। ला यलहका, ला यलहका, तो
अब ये तो उसमें होता है ना, फीमेल में। कहाँ? आपने बेचारी जो नून हटाया है, तो बेचारी फीमेल कहाँ से आ गई? मरियम यहाँ दूर दूर तक फीमेल नहीं। अच्छा याद आ गया आपा, वो फीमेल में नहीं हटता है नून और बाकी सब में हटता है। हाँ चले जी चले, क्या होगा ला यरहका? नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वो दो मर्द। नहीं ज्वाइन कर रहे हैं होगा, वो तो आपने पहले बता दिया, अभी तो हमने नून हस्फ किया है, तो क्या होगा? अच्छा, वो दो मर्द नहीं ज्वाइन करें, बिल्कुल नहीं, यानी मना मत करें, वो दो मर्द ज्वाइन नहीं करें। चले जी, अभी हम आते हैं नसीम बहन की तरफ। हिमानी जो है, नसीम बहन मैं आपको देती हूँ रसला। रसला का मतलब होता है पहुँचना, भेजना, भेजना। रसूल यानी भेजे हुए। चले, रसला का मतलब होता है भेजना, तो इसकी आप मीनिंग करेंगे। थोड़ी आपको मुश्किल देती हूँ चीज़ें ताकि हमें आसानी से हम गहराई में जाए। रसलत, नसीम बहन हिमानी जी। नसीम बहन आवाज आ रही है हमारी? रसलत, रसल, रसला, रसलू, रसलत, रसलता, रसलना जी। लत, आप देखिए साकिन है ना यहाँ पर, ये लफ्ज साकिन। वो दो मर्द भेजा। दो मर्द अगर होता तो अलिफ होता ना, यहाँ सिर्फ ता साकिन है। रसलत, वो एक औरत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वो एक औरत जी। वो एक औरत ने भेजा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उस एक औरत ने भेजा। बहुत अच्छा, उर्दू में परफेक्ट तर्जुमा किया कि उस एक औरत ने भेजा। चले, अभी हम करते हैं फिले मुजारी की तरफ। तर से लो, तर से लो जी। नसीम में वो एक औरत भेज रही है। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आपने कहा, वो एक औरत भेज रही है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना। एक तो इसके अंदर हम कहेंगे कि ही छुपा है, एक कहेंगे अंत छुपा है, वो एक औरत भेज रही है जी। और दूसरा क्या कहेंगे? तरसिलो, तरसिलाने, तरसिलून, तरसिलीन, सॉरी, यरसिलो, यरसिलाने, यरसिलून, तरसिलो। बहुत अच्छा, तरसिलाने, तरसिलन, यरसिलन, तरसिलो, तरसिलाने, तरसिलून, तरसिलीन, तरसिलाने, तरसिलन, अरसिलो, नरसिलो। इसमें एक अंतर भी हम कह सकते हैं कि तुम एक मर्द भेज रहे हो या वो एक औरत भेज रही है, दोनों बहुत अच्छा। चले, अभी इसको और करती हूँ नसीम में। ला तरसिलो, वो एक औरत नहीं भेज रही है। बहुत अच्छा, वो एक औरत नहीं भेज रही है, परफेक्ट। अभी हम इसको आगे से एक और करेंगे। ला तरसिल, इतना तो अभी मैं अगर ट्राई करूँ, जी, मत भेजो वो एक औरत, ऐसा जी जी जी, मत भेजो। बहुत अच्छा, मत भेजे, आगे मतलब पहले अमर है नहीं, हाँ बिल्कुल सही, पहले अम्र है लेकिन नाम है, सही, बिल्कुल सही। मत भेजे वो एक और, मत भेजो। बहुत अच्छा।
देखा आपने इतना अच्छा किया माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया, सबने बहुत अच्छा किया। पर नहीं, माशाल्लाह से सबने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। तो बस अब लास्ट में जो हमारा न्यू लेसन है उसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जल्दी से मैं करूँगी, फिर आप उसमें वीडियो देख लेंगे, फिर हम एक आयत कर लेते हैं सूरह जुमा की। सबसे पहले हम जब आते हैं तो हमारे पास कुछ लफ्ज़ों की किस्में होती हैं, आपको पता है ना। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसके अंदर वोवेल्स होते हैं, आपको पता है ना। कभी कभी जैसे कवला, कवला में क्या है, वोवेल्स है या नहीं है? वाओ वॉवेल्स है, वाव, है। यसरा, ये, सीन ये हाँ। क़ज़या, या, सही। ज़रबा, रा, रा वोवेल्स है। रा नहीं है, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? वाओ अलिफ ये वाव अलिफ छोटी है। हाँ, तो ज़रबा में है वोवेल्स? हाँ नहीं सॉरी, नहीं है। सअला, इसमें नहीं है। रबबा, अलिफ है, हमजा है, हमजा में और अलिफ में हमजा। फर्क है। कुछ अरब है ना, देखिए जब हम पढ़ते हैं ना अलिफ आता, अरब में कुछ अरब है वो जो कहते हैं कि अलिफ एग्जिस्ट होता ही नहीं, ठीक है। और कुछ कहते हैं अलिफ एग्जिस्ट होता है लेकिन कहाँ पर, जैसे आ बा ता सा में, अल्फ मद्दी में, ठीक है। और ये जो आता है ना, जैसे अमना फॉर एग्जांपल, अमना, सअला, जैसे क़रा, इसमें आपने देखा हमजा है ना, रूट वर्ड्स में आता है। एक प्रॉपर रूट वर्ड्स में हमजा हरूफ असल में से करार पाया है, इसको कहते हैं हमजा। ये हमजा होता है, अलिफ नहीं होता, सही जी, ये होता है हमजा, अलिफ नहीं होता। तो अभी आपने देखा एक हमारे पास है रबबा, ज़रबा, सअला, अमना, क़रअ, बअसा। एक आपने बासा वो वाला बासा पढ़ा, एक ये बासा, इसको नोट कर लीजिएगा। रूट वर्ड्स चेंज होते हैं तो रूट मीनिंग भी चेंज हो जाती है। फिर हमने देखा रबबा, फिर हमने देखा वददा, फिर हमने देखा अददा। हाँ, आपने देखा इसमें एक जैसे लफ्ज हैं। हम आते हैं इस बहस की तरफ जी। इनके रूट आपने क्या बताया? चले मैं इसको फिर से करती हूँ एक दफ़ा, ठीक है। कवला, कवला, इसके अंदर जो हमारे पास इसके आप नोट करिएगा। मैं कुछ को वो दायरा खींचूंगी, आप नोट करिएगा क्योंकि ये हमारा ख़ास काम होगा इनके ऊपर। हाय, ये इसके अंदर क्या है, वाव है ना, इसके अंदर क्या है, या है, इसके अंदर या है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके ऊपर हमजा है, ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है, इसके ऊपर हमजा है, हमजा है, हमजा है। और आपने देखा ज़रब में कुछ भी, ज़रब में हमजा नजर आया आपको? चले मैं इसको नोट करवाती हूँ आपको। ज़हब, अलमा, अलिमा, चले। अच्छा, ज़रब में आपको नजर आया? हाँ, इसमें वाव है? नहीं, नहीं है। इसमें या है? नहीं, इसमें हमजा है? नहीं, नहीं है। इसमें डबल लफ्ज है एक जैसे? नहीं, डबल नहीं है। हाँ बिल्कुल, जिसके अंदर वोवेल्स ना हो, हमजा ना हो, या दो एक जैसे लफ्ज ना हो, उस लफ्ज की क्वालिटी या उसकी मार्केटिंग बढ़ जाती है। देखिए उसको क्या कहते हैं, उस लफ्ज को क्या कहते हैं? इस लफ्ज को कहते हैं सालिम। सही, सालिम। अब इसको नोट करिए, इसके कायदे और कानून होंगे, क्योंकि मैं इसलिए आपको ये पढ़ा रही हूँ क्योंकि सबके कायदे और कानून होते हैं। तो जो ज़रबा है ना, जैसे सालिम लफ्ज है, सालिम किसे कहते हैं? सालिम का मतलब होता है वो लफ्ज
जिसके अंदर न वाव हो, न अलिफ हो, न या हो, न हमजा हो, न डबल लफ्ज हो, उसको कहते हैं सालिम। और अगर किसी के अंदर वाव है या अलिफ है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं मुअतलुन। मैं दोबारा से लिखूंगी, ठीक है? उसको कहते हैं मुअतलुन, मुअतल, उसको कहते हैं मुअतल। उसको सही और सालिम नहीं कहेंगे। और जिसके ऊपर हमजा हो, जिसके अंदर रूट वर्ड्स में से हमजा हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं महमूज। आपा मोतलून कौन से वाले आपने बोले थे जिसमें वावल्स हो? मैं ये मिटाऊं? मैं इसको एक दफा फोटो खींच के भेजती हूँ। भाई मेरा फोन कहाँ गया? हाँ, मैं इसके पिक्चर लेके आपको भेजती हूँ ना, फिर इसके बाद मैं सारा डिटेल से लिखती हूँ, ठीक है मरियम? ताकि हमारे लिए अच्छे से हो जाए। अगर टाइम हो गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट टाइम सूरह जुमा कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं सूरह जुमा करूँ या आज ना करूँ? कर लीजिएगा, मेरी तरफ से तो टाइम है। चलें जी। जी टाइम है अब। जी जी कर सकते हैं। मैं वही सोच रही थी कि हम लोग जो है वो एक ही हमारी हफ्ते में क्लास होती है ना, तो कब हम पहुंचेंगे? 2 क्लास कर ले हफ्ते में, हाँ, अगर आपके लिए आसानी हो तो। टाइम को मैनेज करना पड़ेगा इंशाल्लाह, पर अल्लाह मदद करेगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा, अगर चाहा तो लगन होगी ना सबकी। चलें जी। अच्छा, अभी अब मैं आती हूँ। हमारे पास कुछ लफ्ज़ होते हैं जो होते हैं जिसको कहते हैं मुअतल। मैं मुअतल से शुरू करती हूँ। मुअतलुन, मुअतलुन किसे कहेंगे? जिसके अंदर वाव हो, अलिफ और हमजा दोनों को मिक्स नहीं करेंगे हम, और या हो। जिसके रूट वर्ड्स में से, जिसके रूट वर्ड, ठीक है, रूट वर्ड्स में से अगर जिसके पास हमजा हो, वाव हो, अलिफ हो और या हो, उसको कहते हैं मुअतलुन। सही, मुअतलुन। अच्छा, जिसके जिसके रूट वर्ड्स में से हमजा हो, उसको कहते हैं महमूजुन। महमूजुन। कौन सा? हमजा, जिसमें हमजा होगा, चाहे हमजा पहला हर्फ हमजा हो या दूसरा हर्फ हमजा हो या तीसरा हर्फ हमजा हो, उसको कहते हैं मुअतल, महमूज। उसको कहेंगे महमूज। मैं लिखती हूँ साथ में, महमूज। सही। अच्छा, जिसके अंदर डबल हो उसको कहते हैं मुज़ाअफ। मुज़ाअफुन, जिसके अंदर डबल हो, जिसके अंदर डबल हो, यानी जैसे मैं इसको डबल लिखती हूँ, 2 लफ्ज़ डबल हो, जैसे अदद, जैसे वदद। वदद में आपने देखा वाव है। अच्छा, जिसमें ये साथ में, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे मुअतल और मुज़ाअफ, ये दोनों है। मुअतल भी है, मुज़ाअफ भी है, क्योंकि वाव आ गया मुअतल, वाव भी आ रहा है इसमें। अच्छा सही। अच्छा, जिसके अंदर वाव, अलिफ, या ना हो, हमजा ना हो, डबल ना हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सालिम। सालिमुन, उसको कहते हैं सालिम। सही। कितने लफ्ज हो जाएंगे सालिम? आप मेरे साथ पढ़ते जाएंगे। बा, ता, सारा वक्त फा, पहला लफ्ज। बस ऐसे कर देते हैं कि जिसमें ये भी ना हो। अच्छा हाँ, ऐसे कहते हैं। जिसमें वही लिखती हूँ, वाव, अलिफ, या और डबल या हमजा। हाँ, हमजा ना हो, वो सालिम होता है, वो है सालिम।
limbs. ये जो आपने डबल लफ्ज वाला बोला है, ये मुजाफ क्या बोला है? मुज़ाअफ़ुन. मुजाफ. मुज़ाअफ़, हाँ. मुज़ाअफ़ुन. मैं इसको लिखती हूँ मुज़ाअफ़. मुज़ाअफ़ुन. ठीक है. या बस इतना आप याद कर लीजिएगा. बाकी जो इसके कायदे और कानून है वो थोड़े थोड़े करके मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम. अभी हम जल्दी से कुरान की आयत कर लेते हैं. लास्ट में सूरह जुमा की आयत. जी, इसका आपने